Hello everyone. How are you students? The next chapter which we have to start, the name of the chapter is matrices. This is your third chapter of your NCERT. Okay, and it's a very simple chapter. Uh, Before starting this chapter, we should know, हमें पता होना चाहिए कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है. This chapter is used to solve the system of equation. Like if I'm just giving this example. Suppose you have these equations. Okay, let me write. So I'm just writing it. Okay, suppose you have these equations, these three equations, and you have to find out the value of the variable x, y, and z. Fine. So we can find the value of these variables in a very simplest way. So to find these values, we can use matrix method. Okay. So this is a application of this chapter. Using matrix method, we can very easily find out the value of these variables x, y, and z. Got it? Now this is a definition. What is matrix? Okay, so a matrix is an ordered rectangular array of a number or a function. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किसी नंबर्स की, किसी फंक्शन की. तो दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स. सो दिस मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड represented by this rectangular symbol or this curved symbols. For example, here I'm writing 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so this is a matrix. So here I'm representing 1 2 3 4 7 8. These 1 2 3, these numbers, there are total 8 numbers, 1 to 8. So these 8 numbers are known as elements. They are known as elements. So there are 8 elements in this matrix. Okay, so in the matrix, these horizontal in which 1 2 3 and 4, these elements are coming, this is known as rows. Fine. And this is also another row. So this is your row R1, this is your row R2. R stands for row, 1 stands for first row, R stands for row, and 2 stands for second row. So in this matrix we have 2 rows. Got it? And this vertical line, this vertical elements, these are known as columns. Got it? So these are known as columns of this matrix. Got it? So in this matrix we have 2 rows, 1 and 2, and we have 1 2 3 and 4. It has 4 columns. Okay, this is your another example. Okay, so ABC, these are known as, this is your first row and this is your second row. Okay, and this is your first column, second column, and third column. The first column can be represented as C1, this is C2, C3, but in this is known as row R1,
row R2. Got it? See, how can we find out the order of a matrix? Okay, suppose we have this मैट्रिक्स. ओके, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. ओके, जिसमें 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच. नाउ वी हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना है. ओके, सो कैसे निकालेंगे? ऑर्डर में आपने क्या करना होता है, इसके कॉर्नर पे आपको इस तरह से शो करना होता है m इंटू एन. दिस m शोज कितने आपके नंबर ऑफ रोज हैं मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ रोज, एंड दिस स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. फाइन. सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसमें हमें दिख रहा है कि 2 रोज हैं. एक रो ये रही एंड दिस इज सेकेंड रो. फाइन. एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 2 3 एंड 4. These horizontal rows are horizontal elements are known as row. So A B C D, this is your first row. These 4 elements are coming in this first row, and E F G H, this is second row. Okay, so if we have to write the order of this matrix, how we can write? See here. Again, I'm writing the elements of this matrix. E F G and H. हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करा है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में. अगर मुझे यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखना तो M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज. कितनी रोज हैं इसके अंदर? वी हैव 2 रोज. 2 into N हमारा क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स. सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स. 1 2 3 4. सो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. ओके, सो ऑर्डर क्या हो गया इसका? ऑर्डर हो गया इसका 2:3, 2:4, सॉरी. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. गॉट इट? कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. हियर यहां पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं. सो इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 1 2 and 3 rows. So first we write rows, तो 3 into columns कितने हैं? 1 2 3 and 4, and there are 4 columns, so you have to write 4. So the order of this matrix is 3:4. Okay, so this is how we can find out the order of any matrix. Got it? Now see, ध्यान से देखो, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है -4. ये एक मैट्रिक्स है, तो एक जनरल, ये दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स. एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है मैंने. अब अगर मुझे बताना है कि -4 किस पोजीशन पर है, इस मैट्रिक्स में -4 किस पोजीशन पर है, तो मुझे दिख रहा है कि -4 जो है आपके फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है. ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी A11 होगी. फर्स्ट जो 1 है, ये जो 1 है ये रो के लिए होता है, ये आपके कॉलम के लिए होता है. ओके, सो द A11 इज इन दिस मैट्रिक्स. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A11? आपका A11 क्या हो जाएगा? -4. 2 जो एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो A12, द पोजीशन ऑफ A12 इज 2. A13 आपका ऐसे ही A13 8 हो जाएगा. अगर मैं आपसे पूछूं A32 निकालो, A3 मीन्स फर्स्ट 3 इज फॉर रो, थर्ड रो. आपको थर्ड रो में कभी मिलेगा ये एलिमेंट. 2 मीन्स सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम ये रहा आपका, तो आपका एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा. तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है. ओके, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने A33 बताना है, A33 कौन से पोजीशन पर आ रहा है? A33 इज थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो ये रही,
थर्ड कॉलम ये रहा, तो 7 इज द एलिमेंट. Okay, so this is how you can find out the elements with their positions. Okay, I'm giving you the example so you will understand more better. ध्यान अच्छे से समझ में आएगा. मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है. इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, फाइंड A32. आपने A32 एलिमेंट बताना है किस पोजीशन पर आ रहा है. ओके, सो A32 स्टैंड्स फॉर, पहले मैंने A32 निकालना है. तो A32 स्टैंड्स फॉर दिस, 3 स्टैंड्स फॉर, ये क्या शो कर रहा है, रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, यानी कि आपका ये एलिमेंट है इस पोजीशन पर. तो आपने इसको ऐसे यहाँ पे बता देना, A32 इज 2. ओके, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम. कॉलम तो 4 है ही नहीं, रो तो थर्ड आ रही है, कॉलम तो कोई है ही नहीं, कॉलम तो 3 ही है. तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस वैल्यू. ठीक है, हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते. A23, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये है जी आपका -7. तो -7 इज योर फाइनल आंसर. ओके, ऐसे ही आपने अगर A13 निकालना है तो A13 आपका निकलेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका ये आएगा -5. सो इस तरह से हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, after discussing the order of the matrices, the new topic which we have to do, that is the types of matrices. ठीक है, जो हमें नया टॉपिक करना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ओके, एज अ नेम, नाम से हमें पता लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स. ओके, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. अगर इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ओके, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम then it is called a column matrix. For example, A is any matrix. Okay, so here we have only one column. Okay, so here we have only one column, और एक ही कॉलम है हमारे पास. और सिमिलरली एक हमारे पास मैट्रिक्स B है जिसमें एक एक कॉलम मेंशन किया गया है. सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. और ये हमने इसका ऑर्डर मेंशन करा हुआ है. ओके, सो इसमें कितनी रोज आ रही हैं, देयर आर 4 रोज. तो 4 into 1, 1 मीन्स इसमें कॉलम जो है पहले हम लिखते हैं रो को, देन हम लिखते हैं कॉलम को. तो इसका ऑर्डर क्या है, 4:1. इसका ऑर्डर है 3:1. ओके, now second is your row matrix. Row matrix again same as column matrix, जिसमें सिर्फ एक रो हो. ठीक है, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल मेंशन करा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक रो है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आए. ओके, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 into 2 है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें 3 रोज आ रही हैं 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो दोनों रोज और कॉलम्स इक्वल हैं. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. गॉट इट. मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको इक्वल मिले. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारा है दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स.
सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब मींस व्हाट कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। इफ ऑल इट्स नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो मींस व्हाट, सी इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2:2 है। ठीक है, ऑर्डर में लिख दूं, यहां पर ऑर्डर में लिख देता हूं, इसका ऑर्डर 2:2 है। दैट मींस व्हाट, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल्स के, ये एलिमेंट्स जो आएंगे डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल सिर्फ ये एक ही लेना है, ये वाला ऐसे डायगोनल मत ले लेना जिससे हम ज्योमेट्री में लेते हैं, ऐसे नहीं। दिस इज ओनली डायगोनल, ओके, जो कि आपको लेना है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखिए ये डायगोनल्स में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी सारे जीरो है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में डायगोनल होना चाहिए। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if it diagonals elements are equal। मतलब कि diagonals में ही एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, और diagonals में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर वो इक्वल आ जाते हैं, diagonals में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 2 0 0 2, तो डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 2 2 आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं, तो इट इज एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, डायगोनल्स में एलिमेंट्स ओनली √3 आ रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर, इसमें क्या था कि जैसे आपको सारे एलिमेंट्स दो मिल रहे हैं, यहां पे इक्वल मिल रहे हैं। अगर डायगोनल्स में भी एलिमेंट्स आपको 1 1 मिल जाता है, डायगोनल्स में अगर एलिमेंट्स आपके पास 1 1 आते हैं तो उससे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी हियर, यहां पे 1 1, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल्स में एलिमेंट्स 1 1 1 आ रहे हैं, बाकी जीरो। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग लास्ट 3, 4th 5th एंड 6th। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स हैं, इक्वल हो नहीं हो डजंट मैटर। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट अगर जीरो आते हैं देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर वो इक्वल है आपस में, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे 1 1 1 है, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्स को होने के लिए द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये तीनों कंडीशन पॉसिबल होंगी। ओके ओके, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, एज नाम से ही पता लग रहा है इसका, जीरो मैट्रिक्स है। दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के 0 0 आते हैं देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ओके, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को बेटा नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर इसके सारे, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर 2:2 है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और इसमें क्या है, इसका ऑर्डर 3:3 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स 0 0 आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस की, कि कब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, कि कब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल।
किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को हम इक्वल बोल सकते हैं इफ ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं हमारी, तब हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर में गड़बड़ मिलता है तो दे आर नॉट इक्वल, दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। सेकंड क्या है कि जो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट वाले का वो सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो 2 है यहाँ पे, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, तो ये 3 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। गॉट इट। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, देन यू कैन से दैट कि बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। गॉट इट। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए। अब हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके और अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी से। ओके सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, थर्ड पार्ट में हमें इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। So in solution, as you can see that in this matrix we have 3 rows and 4 columns. 3 rows हैं, 4 columns हैं, so the order will be 3:4. Okay. Second part, the number of elements, हमें second part में क्या करना है, number of elements निकालने। number of elements कितने हैं, एक रो में 4 हैं और total 3 rows हैं, total एक रो में 4 elements हैं, total 3 rows है, so you can multiply this so you will get 12. So there are 12 elements in this given matrix. Okay. थर्ड पार्ट में बच्चों में क्या निकालना है, हमें राइट द एलिमेंट्स A13 मीन्स कि A13 किस फर्स्ट 1 स्टैंड्स फॉर, जैसे A13 है ना, तो आपको फर्स्ट जो एलिमेंट शो देखना है और जो 1 गिवन होता है दैट इज फॉर रो, 3 जो गिवन है वो कॉलम के लिए गिवन है। तो आपको देखो कि फर्स्ट रो होनी चाहिए, थर्ड कॉलम होना चाहिए। फर्स्ट रो तो आपकी ये है, थर्ड कॉलम 1 2 3, तो आपका जो एलिमेंट्स आएगा वो 19 आएगा एट पोजीशन A13। तो A13 पे आपको एलिमेंट 19 मिल गया। ऐसे ही A21 है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रही आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका ये मिलेगा आपको दिस एलिमेंट 35। So A21 is 35. A33 means third row third column, third row third column, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी -5, तो -5। A24 means second row fourth column, second row fourth column means this is 12। A23 means second row third column, so 5/2, this is 5/2, actually this is 2, this is 2, this is a 5। okay, so here is your answer of question number 1। okay, in question number 2 में क्या given है, if a matrix has 24 elements, किसी मैट्रिक्स में 24 elements हैं, so what are the possible orders it can have, तो इसके possible orders क्या हो सकते हैं ये बताना है हमें। what if it has 13 elements, अगर इसमें 13 elements होते तो इसका ऑर्डर क्या होता। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब इसमें 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स है, उसके ऑर्डर क्या रहेगा, हम सारे एलिमेंट्स को या तो एक रो में लिख दें तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 24 × 1, ठीक है। 24 मतलब क्या हुआ, इसमें 24 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। या इसका ऑर्डर आएगा 1 × 24, या उससे 24 का मतलब क्या होगा, आपको सारे एलिमेंट जो हैं वो
कॉलम वाइज लिखने हैं, तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्डर आएगा इसका 1 to 24 रो मैट्रिक्स में, एक सिंगल रो में 24 एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि आपकी रो 2 हो, कॉलम आपके 12 हो, ये भी हो सकता है आपकी रो 12 हो, कॉलम आपके 2 हो, एंड आपके 3 रोज हो, 8 कॉलम्स हो, 8 रोज हो, 3 कॉलम्स हो, ठीक है। 4 into 6 हो सकता है, यानी कि 4 रो 6 कॉलम्स हो, 6 रोज हो 4 कॉलम्स हो, ठीक है। ऐसे हम इनको इनके ऑर्डर में 24 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स के अंदर। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ओके। अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होते, 13 इज नॉट डिविजिबल, ओके। या तो उसमें 1 रो में ही आप 1 रो हो, 13 कॉलम्स हो उसके अंदर, या 13 रोज हो 1 कॉलम हो, क्लियर है। ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं और किसी तरह से अरेंज नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इसमें क्या करना है हमें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसमें भी हमने ऑर्डर निकालना है। 18 को डिवाइड कैसे कर सकते हो, 18 into 1 1 into 18, 2 into 9 9 into 2, 3 into 6 6 into 3, ठीक है। तो ये पॉसिबल वेज हैं जिससे हम इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इफ इट हैज 18 एलिमेंट्स। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो ऑर्डर क्या होता, 5 5 इज द ऑड नंबर, पॉसिबल ऑर्डर में भी 5 into 1 और 1 into 5। So these are the possible orders it can have, okay। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब हमें कंडीशंस गिवन है, A1 कंडीशंस गिवन है फर्स्ट सेकंड और 3 पार्ट्स में। अब हमें हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं इसमें सिर्फ थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, इट्स वेरी इजी। थर्ड पार्ट को मैंने यहां पे लिखा आई और जे। आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, जे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम हमारा जो 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ओके। 2:2 मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स, तो जनरली हम उस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, ओके। सो अब हमें पहला एलिमेंट A11 निकालना है, तो हम I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो A11 यहां पर आपका A11 मीन्स क्या हो गया, आपका I1 हो गया, J आपका 1 हो गया। आपने इस जनरल वैल्यू में पुट करा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, सॉल्व करा, इससे 9/2 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड एलिमेंट क्या निकालना है, 1 2। तो आपने यहाँ पे क्या करा, 1 2 निकालने के लिए आपने I की जगह पे 1 पुट करा, J के प्लेस पर आपने बच्चे 2 पुट करा। जब J की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके डालेंगे I और J की वैल्यू, तो आपको 25/2 मिल जाएगी। प्लस माइनस आप इजिली कर लोगे। A21 निकालने के लिए आपको I की जगह पे आपने 2 पुट करना है, J के प्लेस पर आप 1 पुट करो यहाँ पर जनरल, उसमें आपको पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, दैट इज 8। ऐसे जब आप A22 निकालोगे, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, जनरल इसमें पुट कर दोगे आप, आपके पास वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंगली आप इन वैल्यूज़ को सबको अरेंज कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो आप ये अरेंज करोगे वैल्यूज़। तो A11 की वैल्यू आपके पास आ रही थी 9/2, A12 की वैल्यू आ रही थी 25/2, A21 की वैल्यू आपकी 8 आ रही थी, और A22 की वैल्यू आपकी 18 आ रही थी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड 2:2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, जो आपको निकालना था। गॉट इट। सिमिलरली ऐसे ही आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो इस एक्सरसाइज का, ओके। आशा है आपको पसंद आ रही है वीडियो, ओके ओके।
आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है 3 to 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हमें इस इक्वेशन के थ्रू निकालने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करूंगा, ओके। सेकंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो। सी, हमें जो मैट्रिक्स निकालना है 3 to 4 का मतलब है इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हों। दैट मीन्स जनरली अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, ओके। हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है और मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नाउ A11 हम पहले निकालेंगे। A11 के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लेंगे, I और J के प्लेस पर आप I आपका 1 आ रहा है, J आपका 1 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू आपकी I की होती है, दूसरी वैल्यू आपकी J की होती है। 1 1 1 पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, तो 1/2 सेम, -3 मॉड -3। I के प्लेस पर आप 1 पुट कर रहे हो, I के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, J के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आगे, -2 आ जाएगा विद इन मॉड। आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी अगर वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है बाहर, तो 2 आ जाएगा और हाफ ऐसे साथ साथ चलता जा रहा है, उसको कट करके आप 1 निकाल लोगे वैल्यू। ऐसे ही आपको सेकंड वैल्यू 1 2। अब आपका इसमें I आपका 1 है बट J आपका 2 है, तो अब एक जनरल इक्वेशन में पुट करोगे, ये वैल्यू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये पुट करके देख लेना आप, अब मुझे पता है आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये आपने पुट करा, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 1 3 पुट करेंगे, तो 1 3 जब पुट करेंगे आप तो इसमें ही पुट करेंगे, I आपका 1 होगा, J आपका 3 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते जाएंगे। लास्ट में जो आपके पास जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, उनकी जो जो वैल्यूज मैंने, जो प्लेसेस मैंने बताया, मतलब A11 क्या आपका 1 है, A12 आपका हाफ है, A13 आपका 0 है, A14 आपका 1/2। ऐसे ऐसे आप इनकी वैल्यूज पुट कर देना इस मैट्रिक्स के अंदर और आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6। आपको कह रहे हैं कि 2 इक्वल मैट्रिक्स आपको गिवन है, ओके। मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं इसका और रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू सॉल्व। ये हमें क्या गिवन है, 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है XYZ की। अब as from the name, as you know that if these two matrices are equal, so you will compare 4 is equals to Y, 3 is equals to Z, X equals to 1, okay। so on comparing आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको वही ABCD की वैल्यू निकालनी है और ये 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो A - B इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 2A + C को आप 5 के इक्वल कर दोगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2A - B इक्वल टू 0 कर दोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस 3C + D इज इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आप फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना या किसी मेथड से सॉल्व कर लेना जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करा हुआ है और मैंने A की वैल्यू 1 निकाल ली, B की वैल्यू 2 निकाल लिया है, ठीक है। ये एलिमेंट्स में आप 10th में कर चुके हो। सिमिलरली आपको सेकंड, आपने क्या करा, जब आपको A और B की वैल्यू मिल गई, आपने सेकंड इक्वेशन को लिया, यहाँ पर आपने लिखा, इसमें आपने A की वैल्यू डाल दी और आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। C की वैल्यू आपकी आ रही है 3। आपने फोर्थ इक्वेशन को लिया, ये रही आपकी फोर्थ इक्वेशन में आपने C की वैल्यू डाल दी जो आपने ऊपर निकाली थी 3, तो आपके पास D की वैल्यू होगी, दैट इज 4। फाइन, so this is how you can solve question number 7, okay। I think समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करा हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन 1 2 नहीं है ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 3, सॉरी 1 और 3 को पहले मैंने सॉल्व करा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। होप आपको समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर m × n है,
सो अगर उसका ऑर्डर m/n है और हमें इसको स्क्वायर मैट्रिक्स फाउंड बताना है, तो जैसा हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका m और n इक्वल होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, m=n। फाइन। क्वेश्चन 9 में बच्चे ये बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्सेस हमें गिवन है, ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। क्वेश्चन 9 में आपको दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, आपको ऑप्शन गिवन है ABCD, और ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेना और देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 10 में बच्चे ये एक फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने होते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 2m/n। ओके। सो यहाँ पर हमें जो ऑर्डर गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में 3:3 ऑर्डर गिवन है और हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे आप, 2 आपका m जो आपका 3 है, n आपका 3 है, तो 2 3 × 3 करेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्डर नहीं शो कर रहे हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली। तो 2 9, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 2 9 इज 512। तो दिस इज द ऑप्शन D इज करेक्ट एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। होप कि आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ओके, अगर इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब our channel so that in future we can make more videos for you and which can help in your academics. Okay, ताकि फ्यूचर में हम लोग आपके लिए और वीडियो ला सकें जो कि आपकी एकेडमिक में आपको हेल्पफुल रहेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।